Hi everyone, welcome to my channel Parlo UPSC. Now in this video, I'm going to cover a very important international news article that recently Iraq Prime Minister announced a new project called Route of Development. Now we'll try to understand what is this new project Route of Development that recently announced by Iraqi's Prime Minister. And according to this project, that will connect continent Europe with Asia continent. Okay, so this project is more or less similar to China's One Belt One Road initiative. Okay, so both the project is about the development interconnection of two or more continent. So we will focus here to understand entire project. So for your UPSC point of view, this news is very important as you can cover international relation. Okay, maybe in next year prelims they can ask you a question from this project also. Okay, so let's focus and try to understand what exactly this project Route of Development. Now recently, this is a news article that is published recently that Iraq announces a plan of for 17 billion US dollar, 17 billion transportation project linking Asia to Europe. This is what you connect, say that this is the part of Asia and the part of Europe that both will be connect. And whenever we cover this part of the world, okay, we always focus important countries that are making a border with some important important water bodies. तो जैसे यहाँ पर Mediterranean Sea है, this is the Mediterranean Sea and this is the Black Sea, as you know, most important, and this is the Caspian Sea, and this is the your Gulf of okay, Persian Gulf है ये, and this is called a Red Sea, and this is the Arabian Sea. So all these water bodies are very important. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली दिस प्लेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए कैसा हो सकता है उसमें भी हम लोग फोकस करेंगे. ओके, नाउ recently Iraq presented an ambitious plan to turn itself into regional transportation hub. तो इराक अपने आप को रीजनल ट्रांसपोर्टेशन हब एक बना रहा है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगी, and that will connect all the neighboring countries like Syria, Saudi Arabia, Iran, Turkey, okay, Jordan, in Yemen, Oman. This country को ये एक कनेक्ट करना चाह रहा है, एक ट्रांसपोर्टेशन हब बना रहा है by developing its road and rail infrastructure. So road and rail, both road connectivity and railway connectivity that will provide that connect linking between यूरोप एंड मिडिल ईस्ट. सो ये मिडिल ईस्ट का पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट का पार्ट है ये, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, एंड दिस द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. सो टर्की इज दैट कनेक्ट द यूरोपियन कंट्रीज वेरी क्लोज. तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि टर्की से लेकर पर्सियन गल्फ तक एक यहाँ पर रोड एंड रेलवे बोथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बनाए ताकि ज्यादा ज्यादा फास्टर वे में ट्रेड हो सके. ठीक है, आगे बात करेंगे इसका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में के बारे में और क्या है. सो अकॉर्डिंग टू इराक प्राइम मिनिस्टर, ओके, इनका कहना है कि 17 बिलियन प्रोजेक्ट नोन एज रूट ऑफ डेवलपमेंट. तो इसका प्रोजेक्ट का पूरा नाम क्या है, रूट ऑफ डेवलपमेंट, एंड would span a length of country stretching 1200 किलोमीटर from northern border of the Turkey to Gulf in the south. So northern border of Turkey से यहां से लेकर ये पूरा गल्फ ऑफ साउथ तक ये 1200 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है. दैट बोथ रोड एंड रेलवे पैरेलली दोनों चलेंगे. ठीक है, रेलवे पैरेलली होंगे. एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी ने रिसेंटली कहा है कि द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस विद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री represented from the countries Iran, Jordan, Kuwait, Oman, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की एंड यूएई. तो इन सारे कंट्री के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है इनके साथ इनका मीटिंग हुआ और उसी मीटिंग में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया, रूट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट विल कनेक्ट ऑल दिस कंट्री, टर्की, सीरिया, ओके, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ईरान, ठीक है, कुवैत और यहाँ पर ओमान है. इन सारे कंट्री को ये कनेक्ट करने, जॉर्डन भी है, ये सारे कंट्री कनेक्ट होंगे. सो ओवरऑल इट विल बी हेल्प इन इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा इन पूरे रीजन का. ठीक है, आगे बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू इराक प्राइम मिनिस्टर, दिस प्रोजेक्ट एज अ पिलर ऑफ सस्टेनेबल नॉन ऑयल इकोनॉमी. ओके, सो व्हाट इज नॉन ऑयल इकोनॉमी? सो नॉन ऑयल इकोनॉमी मतलब हो गया कि वट एवर द कंट्रीज इनकम, दिस गल्फ कंट्री इनकम फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉन ऑयल रिसोर्सेज. नॉन ऑयल, जैसे ऑयल से जो भी इनकम होती है उसको हम लोग ऑयल इकोनॉमी कहते हैं. और बाकी जो ट्रांसपोर्ट हुआ, इकोनॉमिक सेक्टर से जो भी जीडीपी में एडिशन हो रही है,
बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बिकॉज ऑफ टूरिज्म। ओके, ये सारे चीज क्या आ जाएंगे, नॉन ऑयल इकोनॉमी में आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इराक प्राइम मिनिस्टर कहना है कि दिस इज अ पिलर ऑफ सस्टेनेबल नॉन ऑयल इकोनॉमी, क्योंकि हमें पता है कि ऑयल क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, कभी ना कभी ये खत्म होने वाला है। तो सस्टेनेबल वे में अगर इनकम की बात करें, एक अल्टरनेटिव वे में अगर गल्फ कंट्रीज को अपना इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, so they must be focused on non-oil economy process. Okay, and that link these several Iraq's neighbors and the regions. तो जितने भी इराकियन कंट्री के आसपास के कंट्री हैं उन सारे को कवर करेगा। द प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 3 to 5 years, 3 से 5 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। एंड द ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विल लिंक सदर्न इराक टू द बॉर्डर विद द टर्की, फ्रॉम वेयर इट विल कनेक्ट द रेल एंड रोड नेटवर्क इन यूरोप। तो आप देख सकते हैं ये पर्सियन गल्फ है, और यहाँ से जो यहाँ पर अब रोड एंड रेलवे दोनों जो कनेक्टिव पैरेलली है, एंड दैट विल बी मूव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री। और ये क्या है, डब्ड एज द न्यू सिल्क रूट भी इसको कहा जा रहा है, न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। टू स्ट्रेंथन रीजनल कॉपरेशन, this will be also strengthen regional cooperation and transportation corridor to beneath wide geography. So बहुत सारे कंट्री के इकोनॉमी को डेवलपमेंट करेगा ये प्रोजेक्ट। ओके, सो रोड ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। दैट रोड एंड रेलवे बोथ विल रन पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भी कार्गो शिप से जो भी गुड्स आएंगे, दैट विल अनलोडेड हियर, एंड फ्रॉम हियर टू दिस विल बी ट्रांसपोर्ट बाय रोड एंड railway routes. Okay, to different part of Gulf countries, and it also include European countries. So it work has already, according to Iraq Prime Minister क्या कहते हैं, work has already started to increase capacity at the commercial port of Al Faw. तो यहाँ पर कमर्शियल पोर्ट अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट एक इराक का पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी होगा दैट विल कनेक्ट रेस्ट ऑफ द कंट्री। ओके, वेयर कार्गो इज टू बी अनलोडेड बिफोर इट एम्बार्क ऑन द न्यू रोड एंड रेल लिंक्स। यहाँ से कार्गो क्या अनलोडेड होगा, और यहाँ से क्या होगा, दिस कार्गो विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय रूट बोथ द रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट। ना प्रोजेक्ट आल्सो इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 15 ट्रेन स्टेशन। ओके, 15 स्टेशन पूरे रूट पे आएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग द मेजर सिटी बसरा, ओके, बगदाद, मसूल एंड अप टू दी टर्किश बॉर्डर। तो टोटल नंबर 15 स्टेशन आएंगे जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का जो भी प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ट्रांसपोर्ट वहां से कहीं और भी जगह पे जाएंगे, और देयर विल बी आल्सो सम लोडेड प्रोडक्ट। तो ये पूरे तरह से रीजनल डेवलपमेंट को बता रहा है। और इस प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, द प्रोजेक्ट ऑफर एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल सी रूट्स विथ रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ओके, सो सी रूट्स एक अलग से सी रूट्स प्रोवाइड करा रहा है, दैट विल बी रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आल्सो, एंड शॉर्टर ट्रांजिट times. Okay, that time will be also decreases it. So it will benefit not only the participating country but also the broader global trade network. ये जब बात करें ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क की, तब इसमें यह है कि इराक के जो नए प्राइम मिनिस्टर है नाउ यू वांट टू ज्वाइन अ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, दैट इज द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्या अ ग्लोबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स अबाउट 17 कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप थ्रू द डेवलपमेंट रोड एंड अल्फा पोर्ट। ओके, तो ये जो रूट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये दोनों अगर कंबाइंड हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि काफी रीजनल डेवलपमेंट होने वाले हैं। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है टू कनेक्ट अफ्रीका, ओके, यूरोप एंड एशिया, और इसका है इराक का जो न्यू प्रोजेक्ट है उसका है यूरोप एंड एशिया कनेक्ट करना। तो ओवरऑल ये कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। So despite its oil wealth, about 145 billion barrels of proven reserve, इराक के पास 145 बिलियन बैरल अभी भी रिजर्व्स हैं ऑयल का, ठीक है। इराक लैग्स बिहाइंड नेबरिंग इकोनॉमी ड्यू टू डिकेड्स ऑफ वार सिंस 1980s। तो इराक का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ इट रीजनल डेवलपमेंट को अपना इंप्रूव करे, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर सामने आए, पूरे वर्ल्ड के सामने आए, क्योंकि आज के टाइम में जो कंट्री के पास ऑयल रिसोर्सेज है वो कंट्री सबसे रिचेस्ट एंड पावरफुल है। तो इराक के पास 145 बिलियन बैरल्स होने के बावजूद भी इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ एज कंपेयर टू रीजनल कंट्रीज। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट 1980 से जो भी सिविल वॉर्स चल रहे थे, ओके, वॉर जो चल रहे थे कंट्री में, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी सैंक्शन लगे हुए थे इम्पोज इन 90s, कुछ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की वजह से, एंड पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी दैट फॉलोड 2003 यूएस लेड इन्वेजन दैट टॉपल्ड द सद्दाम हुसैन। तो 2003 में आपको याद होगा कि यूएस ने एक मिशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ओके, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम यूएस ने लॉन्च किया था, ठीक है। इस मिशन में क्या था, यूएस इन्वेडेड अलोंग विद अदर कंट्रीज इन इराक, क्योंकि उनको ये करना था कि देवर थॉट दैट कि इराक इज कहीं ना कहीं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ओके, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन,
बायोलॉजिकल वेपन्स को बना रहा, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आया। लेकिन ये प्रोजेक्ट में कहीं से भी ये खुलकर सामने नहीं आया कि हाँ कहीं इराक इस तरह का एक्टिविटी में इंगेज है। तो बताया जाता है अबाउट द पॉलिटिकल एक्सपर्ट कि देयर वाज द मेन कंसर्न हियर अबाउट दैट यूएस चाहता था इराक के जो ऑयल रिजर्व को उसको अपने कंट्रोल में करना, उसे एक पार्टनर बनाना जिससे कि वो ऑयल का ट्रेड कर सके इन अ वेरी चीप प्राइस। तो इस प्रोजेक्ट का पूरा ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया में? इंडिया और इराक का भी बहुत अच्छा एक रिलेशन रहा है पास्ट में, ठीक है, और अभी भी इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है दैट वी आर ट्राइंग टू मेक अ गुड रिलेशन विद ऑल गल्फ कंट्री, बिकॉज जो पर्सियन गल्फ है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर डूइंग अ ट्रेड मोर ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम पर्टिकुलर सी रूट्स। तो इसलिए हमें इस कंट्री के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग मतलब एक एग्रीमेंट साइन होगा दैट कनेक्ट बोथ द कंट्री। तो ओवरऑल अभी इंडिया की तरफ से कोई वैसा आया नहीं है कि इंडिया वेदर इंडिया इज रेडी टू ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट और नॉट, लेकिन ये प्रोजेक्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट है एंड द मेन फोकस इज सस्टेनेबल नॉन ऑयल इकोनॉमी, ठीक है। सो नॉन ऑयल इकोनॉमी का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट का थीम है जिससे कि अदर एरिया से भी इसको ज्यादा ज्यादा ये सोर्स ऑफ इनकम को कमाया जा सके, ठीक है। So this is for this news article. If you like, please subscribe it. Okay, so that we will meet you in the next video and will try to cover another important news articles. Thank you, everyone.